اے آسمان روشن کرنے والے اللہ، اے زمین کو نور سے بھرنے والے رب، مجھ غمزدہ کا حال تو دیکھ ذرا، میں فریاد کرتی ہوں میری دعا کو سن لے۔ ہزاروں آفتوں سے بچایا ہے تو نے، تیری رحمت نے عنایتوں نے سایہ کیا ہے ہر دم۔ اپنے رحم کی میری اولاد پر کمی نہ کرنا کبھی بھی، میری اولاد کو ہر مصیبت سے شر سے بچانا، حفاظت کرنا ان کی۔ مہرما کہاں تھی تم؟ مجھے بغیر بتائے حرم سے کیسے چلی گئی؟ شاہ سلطان سے ملنے گئی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ بھائیوں کو اکیلا نہ چھوڑنا، اور کیا کام تھا تمہارا وہاں؟ کیوں گئی تھی؟ میں اپنے بھائیوں کے لیے گئی تھی والدہ، ان کی حفاظت کا وعدہ لینے گئی تھی۔ صبح وہ انہیں لینے آئیں گی، خدا را اجازت دے دیجیے گا، ان کے پاس حفاظت سے رہیں گے۔ مہرما میری جان سے بیٹی، تم سے کیا کہا تھا؟ میرے علاوہ کسی پر اعتماد مت کرنا، کبھی اعتماد مت کرنا، کبھی بھی۔ اس کے بعد کیا ہوگا ملکہ؟ کل شام والی بات کے بارے میں آپ نے کچھ سوچا؟ سوچا ہے نگار، اور ایک فیصلہ بھی کیا ہے۔ شہزادی حورم، اس خاتون کا یہاں کیا کام؟ شہزادی یہ دیار باقر کے صوبیدار کی زوجہ ہے، اور اس کے حرم میں آنے جانے پر پابندی نہیں ہے بالکل۔ جو تمہارا دل چاہے کرو۔ نازلی خاتون، شہزادے تیار ہیں تو انہیں بلاؤ۔ شہزادے یہاں نہیں ہے شہزادی۔ کیا مطلب ہے نہیں ہے؟ حورم، شہزادی اس مسئلے پہ میں نے بہت سوچا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اپنی اولاد کی عاقبت کے متعلق صرف میں ہی فیصلہ کر سکتی ہوں، اور کر چکی ہوں۔ انہیں محل سے بھیج دیا ہے۔ آقا کے واپس آنے تک صرف مجھے معلوم ہے کہ کہاں رہیں گے شہزادے۔ افغان آغا ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ والدہ نے یہی حکم فرمایا ہے شہزادے، آپ کی حفاظت کی خاطر کچھ عرصہ محل سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا ہے تو والدہ کیوں نہیں آئی؟ مہرما کیوں وہاں رہ گئی؟ تم کسے کس سے بچانا چاہتے ہو حورم؟ وہ اس خاندان کا حصہ ہے، وہ میرا خون ہے، میری جان ہے۔ یہ کیسی جرت ہے؟ شہزادی مجھے آپ کی نیت پہ بالکل بھی شک نہیں ہے، لیکن اصول آپ جانتی ہی ہیں۔ شہزادوں کو خفیہ جگہ چھپا کر ان کے علاوہ آپ کی بھی حفاظت کر رہی ہوں۔ تم کسے دھوکہ دینا چاہتی ہو حورم؟ تم کیا کرنا چاہتی ہو میں جانتی ہوں۔ اپنی دانست میں شہزادے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے اپنے بیٹے کو تخت نشین کرا دو گی۔ شہزادی مجھے آپ دوسروں جیسا مت سمجھیں، میرا نام حورم ہے۔ آقا سے ایک حقیقی محبت کے رشتے میں بندھی ہوئی ہوں میں۔ جب تک ان کی سانسیں چل رہی ہیں اس تخت کے اکلوتے مالک سلطان سلیمان خان ہیں، شہزادے مصطفیٰ ہی نہیں
अगर मेरी औलाद भी हो तो मेरी लाश से गुजरे बगैर इस तख्त पर कोई नहीं बैठ सकता। अल्लाह बचाए। अगर उनकी सांस साकित हो चुकी है तो तुम उस वक्त क्या करोगी? ऐसा बुरा ख्याल अपने जहन में क्यों ला रही हैं आप शहजादी? ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आका के दिल की धड़कन मैं हूं, और मैं अगर आपके सामने जिंदा हूं तो इसका मतलब है कि आका भी हिफाजत से हैं। सिर्फ जज्बों पर तकिया नहीं कर सकते हुरम। फौरन शहजादी कहाँ है मुझे बता दो। मेरे भतीजे कहाँ हैं? खता कर रही हो तुम, अपने हाथों से आग में झोंक रही हो। हर तरफ जब मौत रक्स कर रही है तुम उन्हें कैसे महल से निकाल सकती हो? अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसका अज़ाब तुम्हारी गर्दन पर होगा। क्या हुआ? कौन है ये लोग? शहजादे रुकें, आप यहीं ठहरे। कुछ नहीं होगा जानिए। शहजादे! इधर आओ। शहजादे! Sarıyordum. Sultanımıza haber ver. Çabuk! मलिका। मुस्तफा पाशा। मलिका, आपके लिए अच्छी खबर लाया हूँ। शुक्र है कि आका सलामत हैं और सेहत भी ठीक है, और वो इस वक्त अवलोनिया पहुंचने वाले हैं। कुछ देर कबल खबर मिली है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे शहजादे वो कैसे हैं? शहजादे भी सलामत हैं मलिका। खुशी की इस खबर को शहजादे मुस्तफा तक पहुंचाना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है ये खबर उन्हें रोकने के लिए काफी होगी। शहजादे मुस्तफा को उसकी की गई बगावत की सजा जरूर मिलनी चाहिए पाशा। इस सूरत हाल से आका को आगाह करो कि उनके तख्त पर उनकी औलाद कब्जा करना चाहती है। आपका जो हुक्म मलिका। वालिदा, जल्दी बताएं, बाबा की तरफ से कोई खबर आई? वो खैरियत से है मेहरमा। तुम्हारे बाबा, तुम्हारे भाई, अल्लाह का शुक्र है सब सही सलामत है। आफत टल गई मेहरमा। हमें असाब में मुब्तला करने वाले अब खुद परेशान होंगे। इस बगावत की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। तो फिर जहांगीर और ब्यासत को छुपाने की जरूरत नहीं है ना? हमें कुछ नहीं मालूम क्या हो जाए। एक दो दिन सब्र कर लेते हैं। क्या मालूम शहजादे मुस्तफा अपना इरादा बदलेंगे या नहीं। आगा जल्दी करो, जल्दी करो, कोई है क्या? वल्लाह मैं मर गया, खत्म क्या हो हुआ गया। सुंबुल आगा? मर गया, वल्लाह मर गया। मलिका को अब क्या बताऊंगा मैं? सुंबल आगा, क्या हो गया है तुम्हें? अफीफा खातून कयामत। अल्लाह मेरी जान ले लेता तो जान छोड़ जाती है यार। इधर क्यों चिल्ला रहे हो तुम? मलिका, 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 सुंबुल आगा, यहाँ क्या कर रहे हो? आखिर क्या हुआ है? मलिका, कुछ देर कबल एक आगा आया। अचानक उनका रास्ता रोक लिया, जैसे उन्हें सब कुछ मालूम था।
फौरन बताओ कहाँ है मेरे बच्चे? मलिका, डाकुओं ने रास्ते में रोक लिया, उन्हें लेकर चले गए। फारिया खातून उनके पीछे गई है मलिका, और अफगान आगा यही बताने के लिए आए हैं यहाँ पर। आखिर कैसे हिफाजत नहीं कर सके तो मेरे शहजादों की? जरूर अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सके। इधर उधर बता दिया होगा तुमने, है ना? इतना सरास भी अपने दिल में नहीं रख सके तुम। वल्लाह किसी से कुछ नहीं कहा मलिका, लगता है कि ताकुब कर रहे थे। निकाह उसे बताया था क्या? नहीं, लेकिन वो शैतान जैसी है, किसी तरह मालूम कर लिया होगा। मलिका! फारिया, क्या हुआ? बताओ, कुछ सुराग मिला क्या उनका? मैंने जंगल में दूर तक ताकुब किया मलिका, उन्होंने मुझे नहीं देखा। एक कोठरी में लेकर गए हैं शहजादों को। मैं आपको खबर देने के लिए वापस आ गई। आओ जल्दी आओ, चलो जल्दी। यहाँ लेकर आए हैं मलिका। कितने अफराद थे? बहुत ज्यादा थे, सब एक साथ अंदर गए हैं। मलिका, आप यहीं ठहरे, सिपाही शहजादों को लेकर आ जाएंगे फौरन। नहीं, मैं भी चलूंगी अंदर। आखिर तुम आ गई हुरम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इस बात का क्या मतलब शहजादी? मेरे बच्चे कहाँ हैं? फिक्र मत करो, शहजादे ठीक हैं, उन्हें महल भेज दिया है। वो लोग कौन थे? तुमने देखा था क्या उन्हें? मालूम नहीं। शहजादे, अगर भूख लगी है तो खाना तैयार करवाऊं आपके लिए? अम्मी कहाँ है? कुछ देर में आ जाएंगी जहांगीर, डरो नहीं, सब ठीक है। ये क्या हो रहा है शहजादी? तखलिया, मैं हुरम के साथ तखलिया चाहती हूँ। जाओ। कहिए। क्या तुम अब भी नहीं समझी हुरम? वो सब एक खेल था। आका शुक्र है बिल्कुल ठीक है।
वैसे भी वो मजरू नहीं हुए थे। मेहमत और सलीम भी ठीक है। मुस्तफा पाशा को वो खबर मैंने बजाते खुद भेजी थी। इसके अलावा शहजादे मुस्तफा मनीसा से बिल्कुल निकले ही नहीं। उन्हें तो किसी बात की खबर भी नहीं। तुम्हें भी खबर देने वाला आगा मेरे आदमियों में से एक था। आपको मुबारकबाद देती हूँ शहजादी। इतना सब कुछ तो शैतान के दिमाग में भी नहीं आता। इन सब का मतलब क्या है तुमने मुझसे ये पूछा था। तो फिर सुनो हुरम, मेरे शौहर लुत्फो पाशा के दीवान में दाखिल होने पर तुम मुझे मुबारकबाद देने आई थी, लेकिन इब्राहिम पाशा की आकबत याद दिलाकर तुमने मुझे धमकी दी थी। कुछ याद आया? आपने ठीक समझा बिल्कुल। मैंने कहा था ना, हमें दूसरों से ना मिलाना, ना लुत्फो पाशा को इब्राहिम पाशा से और ना मुझे खजीना से। लेकिन तुमने कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। मैं तुम्हें दोबारा ये बात याद दिलाना चाहती थी। मेरा ख्याल है तुम्हें अब समझ आ गई होगी। देख लिया तुमने, इंसान की किस्मत एक लम्हे में बदल सकती है। यहाँ क्यों बुलाया था ये बताएं शहजादी आप। आपका मकसद क्या है? कहीं इब्राहिम पाशा की मौत का इंतकाम तो नहीं ले रही आप मुझसे? इब्राहिम पाशा इस सल्तनत की बहुत अजीम शख्सियत थे हुरम, एक अच्छे सिपाही थे। लेकिन जब एक खातून जहर दे रही हो तो बादशाह भी हो तो फायदा नहीं, क्यों है ना? हर कोई अपना अंजाम देखता है। दुरुस्त है, मगर क्या कह सकते हैं। उस वाक़े से तुम्हें इबरत लेनी चाहिए थी हुरम, क्योंकि इब्राहिम पाशा भी तुम्हारी तरह एक गुलाम थे। अपनी हद को भूलकर खुद को नाकाबिले तस्कीर समझोगी तो एक लम्हे में जमीन के नीचे पाओगी खुद को। शहजादी, मैंने आप पर एतमाद किया था क्योंकि पहली मर्तबा इस खानदान के किसी फर्द ने मुझसे अच्छा रवैया रखा था। मुझे समझने की कोशिश की तो खुशी हुई थी मुझे, मगर अब पता चला कि पहले दिन से ही मेरी दुश्मन थी आप। छुप कर दुश्मनी को खुफिया रखकर, बिल्कुल खसीना की तरह। मैं समझती थी कि आप हसीना सुल्तान जैसी नहीं। गलत थी मैं। लेकिन आपसे कसम खाती हूँ कि आपकी आकिबत भी वैसे ही होगी। लुत्फो पाशा, तुम 10 सिपह सालारों के साथ इतालिया के जुनूब में पेशकदमी करोगे। पहले तुम औतरांतो फतह करोगे, उसके बाद इतराफ के सब छोटे बड़े किलों पर काबिज होकर हिफाजती इक़दामात करोगे। तुम्हारे अकब में अपने लश्करों के साथ औतरांतो पहुंचेंगे। तुम्हें अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिला है। मेरा सर आपके लिए कुर्बान हो आका। अपनी जान दे दूंगा, लेकिन किसी हाल में भी आपके हुक्म की तामील किए बगैर मैदान जंग से वापस नहीं लौटूंगा। हाला मालकोचू, तुम्हारी इतालिया के लश्कर की तैयारी की क्या सूरत हाल है? आका वो हमारी आमद के मुंतजिर हैं।
اہل ہسپانیہ سے ناخوش ہونے والے اطالیہ کے لوگ بھی ہماری مدد کریں گے. لطفو پاشا کو میں نے ضروری معلومات فراہم کر دی ہیں. اس کے علاوہ وینیدک کے کفار کی نگرانی کرنے والے آدمیوں میں سے ایک نے خبر بھیجی ہے. وینیدک کی بحریہ حرکت میں آ چکی ہے. وہ وینیدک کے بحری بیڑوں کی حرکت پر نظر رکھیں اور دو طرف آگ میں مت کودیں. آپ کا جو فرمان میرے آقا. ہمیں فوراً کچھ کرنا چاہیے ورنہ روما کا انجام بھی بالکل قسطنطنیہ جیسا ہوگا. پاپا اعظم، خطرہ ہمارے دروازے تک پہنچ چکا ہے. اس کے باوجود تمام شہزادے خوش ہیں. اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وینیدک میں سلطان سلیمان کے خلاف جنگ کی جائے، جس کے لیے وینیدک کے لشکروں کی ضرورت ہے. ہمیں ایک چنگاری سب جلا کر خاکستر کر دے گی. شاکلین کے سپہ سالار آندرے دوریا کو خبر بھجوائی جائے. وینیدک کے سالار پیسارو کے ساتھ سمجھوتے کی افواہیں پھیلا کر انہیں باربروس کے کانوں تک پہنچانا ہوگا. میں آپ کی ذہانت کے آگے سر جھکاتا ہوں پاپا اعظم. اترانتو فتح کرنا آسان نہیں ہوگا پاشا. آپ کی ذمہ داری کافی دشوار ہے. بچا فرمایا والی صاحب، یہ ایک دشوار کام ہے، لیکن عظیم رب کی مدد سے انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی. مجھے دراصل ایک بات کی فکر ہے پاشا، وہ یہ کہ اس سفر کا کیسے اختتام ہوگا. انشاءاللہ ابراہیم پاشا جیسے سالار اعظم کی کمی محسوس نہیں ہوگی. پاشا کے ساتھ میرے تعلقات ٹھیک نہیں تھے، لیکن کسی نے کہا ہے نا کہ بہادر کو مار دو مگر کبھی اس کا حق نہ مارنا. میں نے کہیں ان کی جیسا سالار نہیں دیکھا، بے شک، لیکن ان کی کمی ہمیں محسوس نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ انہیں جنت میں جگہ دے. آمین 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 آمین. آپ اطمینان خاطر رکھیں پاشا، اس عظیم سلطنت میں اور بہت سے باوقار پاشا ہیں، کوئی دوسرا یہ علم بلند کر دے گا. درست، لیکن وہ علم تمہارے حصے نہیں آئے گا. اپنے جملے پر غور کرو نسو افندی. تمہارے سامنے ایک پاشا ہے، پاشا. ٹھہر جاؤ، سفر میں کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دینا. یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم سفر میں. تمہاری شکایت کر دی تو بہت برا ہوگا. ایک پاشا سے تم کیوں کر ایسے بات کر سکتے ہو؟ اس کے الفاظ آپ نے نہیں سنے کیا؟ اس کی کیا مجال جو پاشا کی شان میں گستاخی کرے. اسے کہنے دو. آقا ویسے بھی کافی پریشان ہیں، یہ بات ان کے کانوں تک نہ پہنچے. چلو. وہ ابراہیم پاشا کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہے. تم بار بار اس کے زخموں کو کیوں ہارا کرتے رہتے ہو؟ سفر میں ہیں ہم پاشا، ہمیں عورتوں کی طرح رونے کے بجائے مردانگی دکھانی ہوگی. جب تم گھوڑوں کی مالش کرتے تھے وہ جنگوں میں آقا کے ساتھ ہوتا تھا. اپنی قابلیت میں ماہر ہے. دیار عجم کے دوران بھی اس کے نام کے چرچے تھے. اس کی ذات کو موضوع بنانے کے بجائے اپنی ذات کی طرف توجہ دینی چاہیے تمہیں. رستم پاشا. جہانگیر، بیاست، شکر ہے تم دونوں بخیریت ہو. بہت زیادہ پریشانی ہو گئی تھی مجھے. بابا کی خبر آئی ہے والدہ، وہ سلامت ہیں. بالکل. سفر کے بعد تمہارے بھائیوں کے ساتھ واپس آئیں گے انشاءاللہ. ناسلی، انہیں فوراً حمام لے کر جاؤ. جہانگیر، میرے بہادر بیٹے،
मैं तुमसे वादा करती हूँ दोबारा कभी एक पल के लिए भी तुम्हें खुद से जुदा नहीं करूंगी। वादा। डरो मत। वालिदा मास्टर चाहती हूँ, आप बरहक थी। शाह सुल्तान पर एतमाद करना मेरी खता थी। जो होना था वो हो गया मेहरमा। मेरा जहन नहीं मान रहा, उन्होंने ये सब आखिर क्यों किया? आका की वापसी के बाद उन्हें जरूर सजा दिलवाऊंगी। मेहरमा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी। तुम उनसे दूर रहोगी, कतई इस मसले में दखल नहीं दोगी। तुम सुन लिया? मलिका, कुछ देर कबल मुस्तफा पाशा से मुलाकात हुई थी। उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया है मैंने कि किसी भी सूरत में आका तक खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है मेहरमा, तुम अपने कमरे में जाओ। मलिका, गुस्ताखी की माजरत चाहता हूँ मैं। शाह सुल्तान से आपकी क्या गुफ्तगू हुई? क्या सबब था ये ढोंग रचाने का? आखिर मुझसे ये सब क्यों छुपाया आपने शहजादी? वो सब सुनने के बाद मैं बहुत खौफजदा हो गई थी। बाज चीजों को ना जानना जानने से ज्यादा बेहतर होता है गुलफाम। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी मालूम हो। शहजादी, वो कैसी साजिश थी? सिर्फ हुरम के साथ ही नहीं, यह हम सब लोगों के लिए भी एक मजाक था। मैंने किसी मजबूरी की वजह से किया गुलफाम, लेकिन हुरम मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकली। आपको बताया था शहजादी, हुरम सुल्तान सब कुछ कर सकती हैं, क्योंकि वो आका के मामले में बहुत जज्बाती हैं। वो सच में उन्हें चाहती हैं। कभी ना होने वाली कोई चीज नहीं होती। कोई भी चीज कभी भी हो सकती है, बस हालात और वाकयात साथ दे दो। तुम जा सकती हो अब। अफीफा खातून पहुंचने ही वाली होंगी। देर तक हमारी बातें होती रही, लेकिन उसकी नीयत कुछ और है सुंबल। खजीना की जगह लेना चाहती है वो। उसके महल पर तो कब्जा कर चुकी है, अपने शौहर को भी दरबार में दाखिल कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि अपने शौहर को वजीर आजम बनवाना चाहती है, और उसके रास्ते की रुकावट सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। जानबूझकर मुझे असियत दी है उसने। मेरे लिए ऐसे हालात पैदा करती है कि शहजादे बियासत को मैं तख्त नशीन कर दूं, ये चाहती थी वो मुझसे। अगर मैं साजिश में आ जाती तो कलम कर दिए जाते हम सबके सर। या अल्लाह खैर। मलिका, भला इतनी गहरी साजिश को कैसे भाप लिया आपने? मैं कहाँ भाप सकी? मेरी तो हिफाजत बस एक चीज ने की, मेरी आका से सच्ची मोहब्बत और उनसे वफादारी। आपके ख्याल में मुस्तफा पाशा, क्या वो भी इसके नाउनी साजिश में मुलव्विस थे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन निगार पूरी तरह से शामिल थी, क्योंकि शहजादे को तख्त पर बिठाने का मशवरा उसी ने दिया था मुझे। निगार मतलब कि इसी वजह से आई थी। मलिका, आप हुक्म कीजिए, ऐसी कड़ी सजा दूंगा कि याद रखेगी। हाँ नहीं सुंबुल, उसे शाह सुल्तान की खिदमत करने दो अभी। वो जरूर एक न एक दिन हमारे काम आएगी। और ये अफीफा खातून? उन पर भरोसा है मुझे, लेकिन शाह सुल्तान को अपनी औलाद की तरह चाहती हैं वो। हाँ ये तो है। यकीनन उन्हीं का ख्याल रखेंगी। शहजादी,
खुश आमदीद अफीफा खातून। माजरत चाहती हूँ शहजादी, लेकिन सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि आप ही कैसे कर सकती हैं? शहजादों को इस खेल में आपने क्यों कर इस्तेमाल किया? खैर, आका ने अगर मुझसे सवाल पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगी मैं? जरूरत पड़ी तो आका को मैं वजाहत दे दूंगी अफीफा खातून, आप इत्मीनान रखें। आका ने हरम को मेरी अमानत में सौंपा है शहजादी। मलिका के होने के बावजूद हर तरह की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। कोई भी अगर इस निजाम को खराब करेगा तो मुझे अपने मुकाबिल खड़ा पाएगा। जी बिल्कुल, आपका जो फर्ज है आप वही करें अफीफा खातून। जाएं और बता दें आका को। शहजादी, अगर मैं खामोश भी रही तो हुरम सुल्तान खामोश नहीं रहेंगी। अफीफा खातून ठीक कहती हैं, वैसे भी हर कोई शाहिद है इस बात का। लास्ट में उन्हें मालूम हो जाएगा। मैंने जो कुछ भी किया उसका कोई सबूत नहीं है, और हुरम का माजी तो सामने है, मेरा भी छुपा नहीं। तुम्हारे ख्याल में आका किसको मासूम समझेंगे गुलफाम? आका क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे इसका अंदाजा करना मुश्किल होगा शहजादी। मेरे ख्याल में हम सबको एहतियात करनी चाहिए। और कुछ नहीं कहना तो आप जा सकती हैं। अब हम क्या करेंगे शहजादी? हुरम इस मामले पर खामोश नहीं रहेगी। अगर शैतान का सर कुचलना चाहती हो तो कम से कम उस जैसा ताकतवर होना पड़ेगा गुलफाम, उसकी तरह संगदिल, सालिम और सफाक। शहजादी, आपको यकीन है क्या? आने वाली खातून के बारे में कभी भी अच्छा नहीं सुना। जादूगरनी है, सब यही कहते हैं। मैंने इसी वजह से बुलाया है उसे। आपको उससे क्या फायदा होगा? अचानक उसकी क्या जरूरत पड़ गई मैं समझी नहीं। बस वो आपको अपनी बातों से परेशान करेगी। माहिदोरा, चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती उसके साथ। शहजादे को भी खबर नहीं है। अगर मालूम हो गया तो मुझ पर बहुत नाराज होगा। तुम्हारे बताए बगैर वो कैसे जान सकता है? शहजादी, सालिहा खातून आ गई हैं। अंदर ले आओ उसे। नरगिस शाह, मेरी जान सी बेटी, किसी चीज की कमी तो नहीं है आयशा खातून? शुक्र है खुदा का, आप मेरे पास रहें, इसके सिवा किसी चीज की जरूरत नहीं शहजादे। आओ। आओ तशी अली। शहजादे मोहतरम, आका ने एवलूनिया में लश्कर के साथ पड़ाव किया है। लुत्फो पाशा और तुरान फतह करने के लिए तालिया के जुनूब में रवाना हो चुके हैं। आला। लुत्फो पाशा को अहम मुआद सौंपने पर मुझे मुसरत हुई। इसमें कोई शक नहीं कि फतेयाब होंगे वो। लेकिन इब्राहिम पाशा के बगैर ये सफर मुस्बत नतीजे का हामिल होगा शायद ही मुमकिन नहीं लगता, जब तक सारी कमान अयाज पाशा के हाथों में है। आका ने सूरत हाल का जायजा लेकर तमाम इक़दामात कर लिए होंगे शहजादे। हाँ बिल्कुल, लेकिन उनके पास उनके हुक्म की तामील करने वाले काबिल ताकतवर सालार नहीं तो क्या फायदा। फिर भी ये सफर खैरियत का वसीला होता शी अली। आका कम से कम जान ले कि लोगों के हमरा सफर पर रवाना हुए हैं।
اے میرے یار دیرینا، تمہیں سونپی تھی میں نے اپنی سرائے پختر، تاکہ یہ تمہارے نفس کو ڈھانپ دے، مٹا دے تمہارے دل میں چھپا غرور، جذب کر لے اپنے اندر تمہاری سب نخوت، تمہیں عاجز بنا دے، ممنون و احسان مند کر دے اس ذات باری تعالیٰ کا جو ہم سب کا مالک و مختار ہے۔ ہم سب اسی کے بندے ہیں، میں بھی اور تم بھی، مگر تم نے میرا نائب ہوتے ہوئے خود کو مختار کل سمجھا، غرور نے تمہیں اندھا کر دیا، میری ہر بات کو تم نے نظر انداز کر دیا۔ کاش تم میری بات سمجھتے، اس پر غور کرتے تو محب بھی آج اس قدر تنہا نہ ہوتا۔ ہمارا ماضی غرور کی حماقتوں سے بھرا ہوا ہے، اس بجلی نے کتنے شاندار لوگوں کو جلا کر خاکستر کر دیا، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ کیا دکھ رہا ہے تمہیں خاتون؟ بتاؤ مجھے۔ ایک قیامت نظر آ رہی ہے شہزادی، گہری تاریکی، آپ ایک گہرے کنویں میں بند ہیں، کنواں آپ کو گہرائی میں کھینچ رہا ہے، لیکن آپ نے ایک سائے کو تھام لیا، وہ رات کی تاریکی سے بھی گہرا سایہ ہے۔ اس کی گردن میں جیسے رسی ڈال دی ہو، اسے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس کی روح بے چین ہو رہی ہے۔ ابراہیم آپ کو اپنے پاس بلا رہی ہے، لیکن آواز سنائی نہیں دے رہی۔ شہزادی بس اتنا کافی ہے، تم چلتی بنو خاتون۔ ماہدارہ تم جاری رکھو، اور کچھ بتاؤ مجھے۔ ایک خاتون دکھائی دے رہی ہے شہزادی، اور وہ کنویں کی منڈیر پر انتظار کر رہی ہے، خاموشی سے رو رہی ہے، جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو۔ اس کے سامنے ایک صندوق ہے، بالکل ایک تابوت جیسا۔ دعا کر رہی ہے وہ خاتون، بالکل رکے بغیر دعا کرتی جا رہی ہے۔ کیا ہے صندوق کے اندر؟ بتاؤ۔ آنسو کا یہ قطرہ شہزادی، میں خون میں ملے ہوئے آنسو کا یہ قطرہ دیکھ رہی ہوں۔ رات کو بھیڑیوں کی آوازیں سنی تھی آپ نے؟ ڈرو نہیں سلیم، پریشان نہ ہو، وہ نہیں آ سکتے یہاں۔ میں بالکل نہیں ڈر رہا، صرف بتا رہا ہوں، میں نے کبھی بھیڑیا نہیں دیکھا۔ رستم پاشا، آپ نے کالے بھیڑیے کا ذکر کیا تھا، کیا یہاں بھی ویسے ہی ہیں؟ نہیں شہزادے، اس علاقے میں کالے بھیڑیے نہیں پائے جاتے، ہر علاقے کے موسم کے حساب سے الگ الگ بنایا ہے رب نے، بالکل ہم انسانوں کی طرح۔ یہ بھی بتایا تم نے کہ بھیڑیے شکار کیسے کرتے ہیں؟ نہیں میرے آقا۔ تو پھر میں بتاتا ہوں۔ بڑے بھیڑیے شکار کرنے کے لیے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ان کا گروہ جنگل میں کتے تلاش کرتا پھرتا ہے اور ان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ حملہ کرنے کی کچھ دیر بعد وہ ایسے پیچھے ہٹتے ہیں جیسے ہار مان لی ہو، جیت کے نشے میں مدہوش کتے ان کا تعاقب کرتے ہیں، لیکن انہیں اپنے سامنے موجود خطرے کا اندازہ نہیں ہوتا۔ بھیڑیوں کا ریوڑ چاند کی روشنی میں چھپ کر کتوں کا انتظار کرتا ہے۔ آگے جانے والا چھٹا گروہ کتوں کو چاند کی روشنی میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب سارے کتے چاند کی روشنی میں آ کر چاروں جانب سے گھیراؤ کر لیتے ہیں،
और कुत्तों को अपने नरगे में ले लेते हैं तो फिर उस वक्त कुत्तों के लिए जान बचाने की उम्मीद खत्म हो जाती है। जीत की खुशी में शोर मचाने वाले भेड़िए, उस वक्त वो तमाम भेड़िए अपना पेट भरने के लिए अपने शिकार को चीर फाड़ कर रख देते हैं बिला खौफ खतर। मुखल होने की माजरत चाहता हूँ। आओ मालकोचू, बेटों के साथ गुफ्तगू कर रहा था। आका, एक जासूस पकड़ा गया लश्करगाह के करीब। उसने कुछ बताया है क्या? उसका नाम जीवानी है। पोप पाउलो के जासूसों में से एक है। उसके बताने के मुताबिक पोप वेनेडिक्ट को जंग के खिलाफ तैयार करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये ऐलान जंग है। सलीम, ठीक तो हो तुम? जाओ चेहरा साफ कर लो। जाओ शाबाश। शहजादे मोहतरम, तुम्हारा नाम क्या है? रुतबा क्या है? हसन है शहजादे, यनीचर का सरबराह हूँ। तुम्हारी ये मजाल कि तुम एक शहजादे का मजाक उड़ाओ। फौरन इस यनीचर को दुर्रे लगाए जाएं। आपने सुना नहीं? मैंने क्या हुक्म दिया है आपको? माजरत चाहता हूँ शहजादे, लेकिन मैं यनीचर का सरबराह हूँ। यनीचर में से कोई भी मुझे सजा नहीं दे सकता। अरे गाफिल, तुम्हारे सामने एक शहजादे हैं। मैं हुक्म देता हूँ इसे फौरन दुर्रे लगाए जाएं। 39 दुर्रे लगाए जाएं। इनका हर तरह से ख्याल रखें वालिदा। यह हमारे पास इब्राहिम पाशा की इमानत है। उनके सुकून के लिए जो बस में है वो कर रही हूँ, खातिर जमा रखो। खजीना सुल्तान अब कैसी हैं? अब भी रातों को परेशान रहती हैं क्या? ये भयानक ख्वाब खत्म नहीं हो रहा। रातों को उनकी चीख से गूंज जाता है हरम। इतना अरसा गुजरने के बाद भी उनकी हालत ठीक नहीं हुई। उनका दुख बढ़ता ही जा रहा है। अपनी औलाद का ख्याल भी नहीं रखती। ऐसी मौत का शोक कैसे खत्म हो सकता है वालिदा? पाशा की तो कब्र भी नहीं है। वो ये सब कबूल करने पर मजबूर है। दूसरी सूरत में ठीक नहीं हो सकती। वो नजूमियों से फाल देखने वालों से मदद की उम्मीद रखने लगी हैं। ये सूरत हाल मुझे डरा रही है बहुत। ये आपको बदरूहों से बचाएगी शहजादी। आप रातों को पुरसुकून गहरी नींद सो सकेंगी इंशाअल्लाह। सब बातें भूल गई मैं। किस वक्त सोते हो किस वक्त जागते हो कुछ मालूम नहीं।
शहजादी, कहो। ये पाया तख्त से भेजा गया है, ये आपके लिए है। आप फिक्र न करें वालिदा, मैं बात करूंगा शहजादी से। इंशाल्लाह कुछ फायदा होगा मुस्तफा। माहिदौरा, शहजादी, क्या ये सच है कि शाह सुल्तान मेरे महल में मुंतकिल हो गई है? आखिर ये कैसे हो सकता है? अम्मी क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ बेटी। तुम लोगों को मालूम थी ये बात और मुझसे छुपाया गया? शहजादी, आपके वापस जाने तक आर्जी तौर पर मुंतकिल हुई है महल में। मतलब दुरुस्त है। आपको कैसे मालूम हुआ? किसने बताया आपको? क्या फर्क पड़ता है? पहले आका ने जुल्म किया और अब शाहबान। आखिर कितनी बार खंजर को बचाएगा मेरी पीठ में? शहजादी, जो होना था वो हो गया। अब आप खुद को रंजीदा मत करें। क्यों रंजीदा ना हूं मैं मुस्तफा? मुझे यहां फेंक दिया गया और वो मेरे महल में खुशियां मना रही है। काजी साहब, खुशामदीद। शुक्रिया शहजादी, आफियत से होंगी खुदा के फजल से। शुक्र है, बहुत ठीक हूँ, शुक्रगुजार हूँ। अस्तगफिरुल्लाह शहजादी, अगर मेरी नाकिस साज से आपका कुछ फायदा होता है, इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी मेरे लिए शहजादी। आपसे खुसूसी मसले पर मशवरा करना है। मालूम है मरहूम बाबा सुल्तान सलीम खान खिलवत में इबादत करने वाले इबादत गुजारों की बजाते खुद मदद करते थे। मरहूम सुम्बुल सिनान आफंदी मोहतरम के फैज और बरकत से इस्तिफादा हासिल करने की कोशिश करते थे। काबिल एहतराम शेख आफंदी ने मिस्र फतह करने से पहले ही उसकी पेशनगोई कर दी थी। मरकज आफंदी हर वक्त रहमत की दुआएं मांगा करते हैं शहजादी, उनका मकाम जन्नत हो। आमीन। मैं इस मदद को जारी रखना चाहती हूँ। बहुत अच्छी सोच है आपकी शहजादी। दरगाह के लिए आका ने मुझे जो हवेली दी थी अयूब पहाड़िये में, उसे मैं उनके लिए वक्फ करती हूँ। इस्तांबुल के काजी की हैसियत से जो जरूरी कार्रवाई है वो करी, मुझे खुशी होगी। बिल्कुल शहजादी, बिल्कुल। मरकज आफंदी इस वक्त भी लश्कर के शेख के तौर पर आका के साथ सफर पर हैं शहजादी। सफर से जैसे ही वापस आएंगे मरकज आफंदी से मुलाकात करके सूरत हाल से आगाह करूंगा। मलिका। काजी साहब, खैरियत तो है? यहाँ कैसे आना हुआ इस वक्त आपका? शाहबान सुल्तान मुलाकात करना चाहती थी। शहजादी को कोई परेशानी या तकलीफ तो नहीं इस महल में? असल में कार खैर के लिए कुछ मशवरा करना चाहती थी वो। समझ गई। मलिका, इजाजत दीजिए। बिल्कुल। आइए मलिका, मैं शाह सुल्तान को आपके आने की खबर करता हूँ। आओ। शहजादी, हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। शहजादी। हुरम, तुम यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? आपने तहखाने से कुछ मंगवाया है ये सुना तो मैं बसाते खुद लेकर आ गई। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये सब
एक मोहतरम शख्स की निशानी है। इब्राहिम पाशा का सामान है क्या? जी हाँ। वैसे ये क्यों मंगवाया आपने? जानना चाहती थी। खजीना को भेजने के लिए मंगवाया है हुरम। यहाँ जो सामान बाकी था उसे भी बनवा दिया है। ऊपर ले जाओ। आगा के हवाले कर दें। क्या हो रहा है खातून? कैसे मालूम हुआ कि हमने सामान मंगवाया है? हरम में अब चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। हुरम सुल्तान ने सख्त इक़दामात किए हैं। उनकी खामोशी अच्छी अलामत नहीं। क्या करना चाहती है मालूम हुआ? नहीं, मेरे सामने कोई बात नहीं हुई। क्या उन्हें शक हो गया? अगर ऐसा होता तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। वो सुंबुल आगा के अलावा किसी से बात नहीं करती। सुंबुल से पूछो फिर, वो इस राज को जरूर अफशा कर देगा। एक दो बार कोशिश की, अगर और ज्यादा की तो शक हो जाएगा। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं खुद निगरानी कर रही हूँ। ये सामान वहां भेजने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई शहजादी ये बात। उनको तो वैसे भी वापस आना है ना? क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो हुरम? मैं तो समझी कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगी। शहजादी, हमारे बीच जो हुआ उस हादसे को भूलने को तैयार हूँ मैं, क्योंकि आपको समझ सकती हूँ। खजीना सुल्तान पर जो गम के पहाड़ टूटे, आपको उसका सदमा पहुंचा है और शायद आप खुद को उनका कसूरवार समझती हैं। उससे दुश्मनी करने की मेरी नीयत नहीं है हुरम। मैं कमजोर नहीं हूँ। मुझे खुशी है। और इस दुश्मनी से किसी को क्या फायदा होगा? ठीक कहा ना मैंने? सच कहती हो। अगर ऐसा है तो आपको जब फुर्सत मिले तो आपको खाने पर दावत देना चाहती हूँ मैं। खाना खाएंगे, बातें करेंगे। शहजादी, शहजादी, फिलहाल रवाना होना मुनासिब नहीं। कुछ नहीं तो आका के सफर से वापसी का इंतजार कर लें। हो सकता है हम साथ चलें पाया तख्त के लिए। बहुत इंतजार कर लिया माहिदौरा, अब मेरे महल जाने का वक्त आ गया है। शहजादी, शहजादी। शहजादे। मुस्तफा, शहजादी ने पाया तक जाने का फैसला कर लिया है। ये किसी भी तरह रुकने पर तैयार नहीं। चाचा खातून, हूर जहां को ले आओ। मुस्तफा, मेरा यहाँ बहुत वक्त गुजरा। तुमने और माहिदौरा ने मेरी मेहमानदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारी एहसानमंद हूं मैं। मेरी बात माने शहजादी, आप कुछ और अरसा ठहर जाएं यहाँ पर। जंग खत्म होने के बाद चली जाइएगा। वैसे भी अब उस महल में क्या बचा है आपके लिए? वो हमारा महल है मुस्तफा, इब्राहिम का और मेरा। हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं उस महल से। किसी और को वहां रहने की इजाजत नहीं दे सकती मैं, कभी नहीं। शहजादी, शहजादी अब बस भी करें। हर बात में सिर्फ इब्राहिम। आप समझते क्यों नहीं? इब्राहिम पाशा नहीं रहे, वो मर गए। उन्हें मार दिया गया। ये कबूल कर लें आप। लगता है तुमने कबूल कर लिया मुस्तफा, और इब्राहिम को बिल्कुल भूल चुके हो।
लेकिन मैं नहीं भूल सकती कभी, आखिरी सांस तक नहीं भूल सकती मैं। आप मेरी इजाजत के बगैर हरगिज यहाँ से नहीं जा सकती हैं शहजादी। मुस्तफा, मेरे बहादुर शहजादे, हरगिज कोई गलत बात अपने दिल में मत लाना। मैं तो सिर्फ अपने महल में जाकर जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, बस अपने बच्चों की वहां परवरिश करना चाहती हूँ, अपने घर में। कम से कम इसका तो हक है मुझे। बताओ। उतरांतो, कास्त्रो, उगैंतो और बहुत से छोटे किले फतह कर लिए हैं आका। आला, लुत्फो पाशा को मुबारकबाद भिजवाओ। इस फतह से साबित हो गया है कि वो बहुत बड़ा सालार है। जो हुक्म आपका। रुस्तम पाशा, तोपे ले जाने के लिए जरूरी तैयारियां शुरू कर दो। जो हुक्म मेरे आका। मेरे आका माजरत, खिज़र खैरुद्दीन पाशा के खुसूसी कासिद आए हैं, कोई अहम मसला है शायद। बादशाह सलामत, मुझे आपसे अर्ज करना है कि वेनेडिक के जहाजों ने सलाम पेश करने के बहाने से एवलोनिया से उतरांतो जाने वाले हमारे एक माल बरदार जहाज को डुबो दिया है। नुकसान का तखमीना लगाने के लिए मेरे रवाना करदा जहाजों पर भी उन्होंने हमला कर दिया। इसके बाद कहा गया कि हमें गलतफहमी हुई है, हम आपका नुकसान पूरा करेंगे और उसको सजा देंगे जिसने ये हरकत की है। और इस बार एलेसांद्रो कॉन्टोरिनी सालारे वेनेडिक के जहाज ने गेले बोलो के सूबेदार के बहरी बेड़े पर कब्जा करके हमारे 300 सिपाहियों को शहीद कर दिया। वेनेडिक बेड़े के सरबरा पिसारो कुमत सिंधा के 43 जहाजों के साथ उतरांतो के साहिल पर लंगर अंदाज हुआ है। जब हमने उनका एक बहरी जहाज गरकाब किया तो वो पीछे हटने लगे, लेकिन हमारे हाथ लगने वाले कुछ मकतूबात से शाकलेन के सालार आंद्रे दोरिया और वेनेडिक के पिसारो के दरमियान समझौता होने की मालूमात मिली हैं। आपके हुक्म का मुंतजर आपका गुलाम खिज़र खैरुद्दीन। वेनेडिक ने सुलह खत्म कर दी। मेरे आका, वेनेडिक वाले ऐसी हिम्मत नहीं कर सकते। सलामी पेश करने के बहाने करीब आकर हमारा एक माल बरदार जहाज गरकाब कर दिया। शायद उनकी बहरिया ने गलत फहमी से ये ज्यादती करती हो। इस्तांबुल और वेनेडिक के सफीरों ने यह सुलह कभी खत्म न होने का यकीन दिलाया था। अगर यकीन दिलाया था तो ये हमला किस तरह हो गया पाशा? गैली बोलू के सूबेदार के जहाज पर कब्जा करके उन्होंने 300 सिपाही शहीद कर दिए और वो उतरांतो के साहिलों तक आ पहुंचे। तुम्हारी क्या राय मालकोचू? आका, अगर वेनेडिक वाले हम पर हमलावर हो गए तो हम दो तरफा आग में गिर जाएंगे। सफर इतालिया को जारी रखना नामुमकिन हो जाएगा। फ्रांस का बहरी बेड़ा कहाँ है? अब तक कोई खबर नहीं आई आका। लुत्फो पाशा और अमीरुल बहर को खबर भेजो, सफर की गुजरगाह तब्दील कर दी गई है, वेनेडिक की तरफ जाएंगे हम। कयामत कयामत बर्पा हो गई पापा आजम। बहुत बुरी खबर है, उतरांतो मफ्तू हो गया। मैंने तो सुना है कि सुल्तान सुलेमान एवलोनिया में मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल वही खैमाजन है पापा मोहतरम। और ये कि उसके वजीर लुत्फू पाशा ने हमला किया है उतरांतो पर और उसके बाद अतराफ के जितने भी किले थे उन पर काबिज हो गया है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। शाकलेन के सिपाहियों ने तुर्कों के सामने अपनी मौजूदगी बिल्कुल जाहिर नहीं की। सुल्तान सुलेमान आज बड़े लश्कर के हमरा एवलोनिया से कूच करेगा पापा मोहतरम। तुम ये बताओ कि क्या वेनेडिक से कोई खबर आई है? हैरत हो रही है मुझे ये सुनकर। क्या इन गाफिलों को अपने मुस्तकबिल तक कोई ख्याल नहीं? अभी तक कोई खबर नहीं है। फ्रांसवा भी जुनूब की तरफ से मिलानो में घुस गया है और ये कि शाकलेन ने जिन किलों पर कब्जा किया था उन्हें दोबारा हासिल करने की नीयत है उसकी।
और शहंशाह शाकलेन और उसका बहरी बेड़ा कहीं भी नहीं है। सिर्फ फ्रांसवा के तुर्कों के साथ इत्तेहाद करने की वजह से उसने हमसे भी कता ताल्लुक कर लिया है। फ्रांस ईसाइयों से कभी अलग नहीं हो सकता। एक बात गौर से सुनो, हमें फौरन फ्रांसवा और शाकलेन की सुलह करवानी होगी, वरना ईसाइयों का नाम हमेशा के लिए मिट कर रह जाएगा। हम भी यहाँ से मुंतकिल होने की तैयारी कर लें क्या पापा मोहतरम? आका, कुफार एडरियाटिक नामी सब समंदर के करीब कोरफू जजीरे पर कब्जा करने की खबर दुरुस्त है। वहां चितन किला है, अगर उसे हमने फतह कर लिया तो वेनेदिक के रास्ते खुल जाएंगे। तुम क्या कहोगे अयाज पाशा? वेनेदिक के रास्ते तो खुल जाएंगे मेरे आका, लेकिन इतने लश्करों के साथ हमें बहुत वक्त लग जाएगा। वेनेदिक की मुसीबत हम पर तुमने मुसल्लत की है और तुमने अभी तक अपनी गलती तस्लीम नहीं की। हरगिज नहीं मेरे आका, मैं कई बार समझाई थी ये बात, मगर तुमने हर बार कहा वो शामिल जंग नहीं होंगे कभी भी। लुत्फो पाशा, 25,000 सिपाही और 30 तोपे लेकर कोरफू जजीरे के लिए रवाना हो जाओ। जैसा आपका हुक्म मेरे आका। अमीरुल बहर पाशा, तुम बहरी बेड़ों की हिफाजत की तदाबीर करो। जो हुक्म मेरे आका। लुत्फू पाशा और खैरुद्दीन पाशा के जाने के बाद तुम उस किले की जाने पेशकदमी करोगे, हम बाद में शामिल होंगे तुम्हारे साथ। शहजादी, आप यहाँ? क्या हुआ फीफा खातून, महल में आने पर पाबंदी है क्या? दाखिल नहीं होने देंगे मुझे? मेरी क्या मजाल शहजादी, कौन जुर्रत कर सकता है? मेरी हैरत को माफ फरमाए शहजादी, खबर नहीं थी मुझे आपके आने की, वरना इस्तकबाल करती आपका। हुरम अपने कमरे में है क्या? आप चाहें तो खबर भिजवा देती हूँ उन्हें। जरूरी नहीं, आप बच्चों का ख्याल रखें। शहजादी, शहजादी, आपको देखकर खुशी हुई। साजिशें करना छोड़ दो हुरम, क्या मतलब है इसका? ये मकतूब तुमने लिखा है ना? मतलब ये कि मिल गया। इब्राहिम की मौत में शाहबान का हाथ है, तुम्हारे ख्याल में यही लिखा है ना तुमने इसमें? मुझे भी जब ये मालूम हुआ तो आपकी तरह हैरत सता रह गई, लेकिन हकीकत यही है शहजादी। सब जितना चाहे मुझ पर इल्जाम लगाना, लेकिन इसमें मेरा हाथ नहीं है। मुझे यकीन है कि ये सिर्फ एक घिनौना इल्जाम है, क्योंकि तुम कितनी चालाक हो ये बात मुझसे ज्यादा कौन जान पाएगा। अगर आपको वाकई इतना यकीन है तो फिर आप मेरे पास क्यों आई हैं? हुरम, आप पहले कुछ पुरसुकून हो जाएं, तो फिर आप इसका मतलब समझ जाएंगे। ठंडे दिल से सोचें, इब्राहिम पाशा के मरने के बाद आखिर सबसे ज्यादा किसका फायदा हुआ है? देखा आपने कि पाशा की वफात के बाद कौन दरबार में शामिल हुआ? आपको मनीसा भेजने की कोशिश किसने की? और बाद में कौन आपके महल पर काबिज हो गया? हुरम, तुम्हारा मकसद क्या है आखिर? मुझे बेवकूफ समझ रखा है? शहजादी, इस पर ना यकीन करने पर आप हक पर जानिब हैं। इसके बहुत से सबब हैं, लेकिन मेरी बातों को बिल्कुल फजूल ना समझिएगा शहजादी। क्या आपके ख्याल में ये सब कुछ अजीब सा नहीं लगता कि शाह सुल्तान के आते ही आपकी जिंदगी तबाह हो गई? मुझे इजाजत दे, मैं ये बात साबित करूं। शहजादी। खजीना सुल्तान आई हैं क्या? जी हाँ। वापस आ गई वो? क्या वो यहीं महल में रहेंगी?
कसम से शहजादी कोई मालूमात नहीं, मैंने तो खुद अभी देखा है उन्हें। यकीन कीजिए शहजादी। बाली साहब को खत मिला क्या? मैं सोच रही थी उन्होंने जवाब लिखा होगा तुम्हें। रवानगी का नकारा बज चुका है शहजादे। कल सुबह यहाँ से रवाना हो रहे हैं। क्या महल वापस जा रहे हैं? नहीं शहजादे, जंग करने जा रहे हैं। इस बात का ख्याल रखें कि आप बहुत सारी गर्दनें कटते हुए देखेंगे, कटते हुए बाजू, टांगे, तकलीफ से तड़पते हुए इंसान। लेकिन ये एक जंग है और आप एक शहजादे हैं। आपकी जिंदगी इन चीजों के बीच गुजरेगी। उस दिन वो कैसे हुआ समझ नहीं आया। अचानक मतली हो गई मुझे, बहुत शर्मिंदगी हुई। ये सोचकर आप उदास ना हो शहजादे, क्योंकि इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं, खास तौर पर इस उम्र में। बाली साहब, ये आपके लिए महल से भेजा गया है। शहजादे, बाई साहब, जब ये मकतूब आपको मिलेगा तब आप सही सलामत होंगे, ये मेरी दुआ है। आका और शहजादे भी बखैरियत होंगे, मैं इसकी उम्मीद करती हूँ। आप उनके साथ हैं, इस बात से बहुत मुतमईन हूँ मैं। जिस दिन से आप गए हैं, पाए तख्त में कैसे दिन गुजर रहे हैं नहीं बता सकती। आपके सफर का खात्मा हो और महल में सही सलामत वापस आए, मेरी आरज़ू है ये। बाली साहब, आका ने आपको याद फरमाया है। खुश आमदीद शहजादी। आपकी आमद की खबर करता हूं शहजादी को।
खजीना सुल्तान तशरीफ लाई हैं। खजीना, खुश आमदीद। खैर तो है, अचानक कैसे आ गई? क्या मैं नहीं आ सकती? बताओ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा महल है, भूल गई क्या तुम? खजीना, क्या हो गया तुम्हें? इब्राहिम का सामान अपने कमरे में क्यों रखा तुमने? तुम्हें बेचने के लिए रखवाया था? तुम क्यों पूछ रही हो ये सवाल? संदूक से मुझे ये मकतूब मिला है, मोहब्बत भरा मकतूब। बरसों पहले इब्राहिम को लिखा गया था। देखने की ख्वाहिश में मैं ये मकतूब लिखने पर मजबूर हुई हूँ। मनीषा से जब से वापस आई हूँ, मेरे और तुम्हारे दरमियान की बातों की अहमियत बढ़ गई है। तुमसे दूर रहने की कोशिश के बावजूद भी मेरा दिल मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। जल्द से जल्द मिलने की उम्मीद करती हूँ। उम्मीद है तुम जरूर आओगे। शाहूबान। मुझे याद फरमाया आपने मलिका। अफीफा खातून किसी को नए महल भिजवा दे ताकि ये खबर पहुंचा दी जाए कि उसे जल्द से जल्द मुकम्मल करें। गुस्ताखी के लिए माजरत चाहती हूँ मलिका। क्या वो महल खजीना सुल्तान के लिए तैयार किया जाएगा? नहीं, शाह सुल्तान के लिए। तुम्हें किसने बताया है कि ये मैंने लिखा है और तुमने यकीन भी कर लिया? यकीन क्यों ना करूं? इस मकतूब ने हर चीज वाज़ेह कर दी है। तुम्हें नहीं लगता क्या? तुम क्या कह रही हो खजीना? कैसे हर चीज वाज़ेह हो सकती है? बरसों मेरे साथ फासला रखा बगैर किसी वजह के। न कभी मेरी खुशी में शरीक हुई, ना मेरे गम में। बल्कि बेहान ने बताया कि तुम मुझसे हसद रखती हो दिल में, लेकिन इसका सबब कभी नहीं बताया। लगता है वो भी जानती थी सब कुछ। खुद पर काबू रखो खजीना। ऐसी मनगढ़ंत बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो तुम? फर्ज कर लो कि सब कुछ झूठ है, हर बात इल्जाम है। क्या यह भी झूठ है कि मेरी जिंदगी छीन ली तुमने, मेरा महल भी छीन लिया, अपनी बहन को बेदखल करके इसमें रह रही हो? क्या यह भी झूठ है? अपने शौहर लुत्फा पाशा को दीवान में दाखिल करवा दिया, यह भी झूठ है ना? इसके बाद क्या चाहिए तुम्हें? उन्हें वजीर आजम बनवाना चाहती हो? अब फौरन महल से चली जाओ। तुम किसके महल से किसे निकाल रही हो? शहजादी, शहजादी को इनके महल तक छोड़ाओ मरजाना का। मैं नहीं, तुम यहां से जाओगी। सिर्फ एक हफ्ता है तुम्हारे पास, खुद ही चली जाओ यहां से, वरना मैं जबरदस्ती निकालूंगी तुम्हें। खुश आमदीद शहजादी। आपके लिए कमरा तैयार हो चुका है। तिफल भी आपके हमराह रहेंगे। अफीफा खातून। हुक्म कीजिए शहजादी। मेरा सामान कहाँ है जो मेरे महल से निकाला गया था? कहाँ फेंका है वो सब? आपने तहखाने से कुछ मंगवाया है, ये सुना तो मैं बसाते खुद लेकर आ गई, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये सब एक मोहतरम शख्स की निशानी है। इब्राहिम पाशा का सामान है क्या? जी हाँ। शहजादी,
मेरी बग्घी तैयार करवाओ फौरन। यहाँ रखा है शहजादी। शहजादी, खैरियत तो है? आप अचानक आ गई, सबब क्या है आपकी आमद का? तुम्हें बताऊंगी गुलफाम। अफीफा खातून। फरमाइए शहजादी। मेरा सब सामान निकालें, इसे साफ करें। हर चीज मेरे महल वापस जाएगी, कोई भी चीज कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शहजादी, लेकिन महल में शाह सुल्तान। आपसे जो कहा है वो करें बस। शाह सुल्तान को निकलना होगा मेरे महल से। मैं तखलिया चाहती हूँ। लगता है कि मेरी हमशीरा के साथ तुम मेरी दुश्मनी करवाना चाहते हो। अब क्या करने को यही बाकी बचा है हुरम? एक झूठा मकतूब लिखकर तुम कामयाब हो जाओगी, क्या ये समझती हो? शहजादी, कहीं से तो आगाज करना ही था ना। और सबसे अहम बात यह है कि वो मकतूब झूठा नहीं है, और अगर ऐसा है भी तो उसमें तहरीर करता आपके जज्बात क्या हकीकी नहीं है? फारिया खातून, खजीना सुल्तान की आमद की हमें क्यों खबर नहीं की? तुम जिम्मेदारी नहीं निभा रही। मैंने बताया था ना, हुरम सुल्तान को किसी पर भी एतमाद नहीं, बहुत ही ज्यादा एहतियात से काम ले रही हैं वो। खजीना को तंग मत करो हुरम, उसकी कमजोर हालत से फायदा उठाकर झूठे इल्जाम लगाकर उसे रंजीदा ना करो। उसका शोक खत्म होने दो, उसके जख्म भरने दो। शहजादी, उनकी क्या हालत है आपको इसकी कब से परवाह होने लगी? आपको तो बस अपने आराम की फिक्र है, क्योंकि बरसों से आप जो ख्वाब देख रही थी वो हकीकत बनने वाला है। खजीना सुल्तान जैसी जिंदगी गुजारना आरज़ू थी आपकी, क्यों सच कहा ना शहजादी? एक जमाने में इस कमरे में मरहूम वालदा रहा करती थी, खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन।
वो एक मलिका बनकर आई थी इस महल में, और एक मलिका की हैसियत से उन्होंने हरम का इदारा तश्कील दिया। और हकीकत तो ये है कि एक मलिका की तरह वो हमसे जुदा हुई। अब इस कमरे की तुम वारिस हो। एक गुलाम बनकर तुम आई थी और एक गुलाम जैसा ही निजाम बना दिया तुमने हरम का, और इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी हैसियत फिर से गुलाम की तरह हो जाएगी हुरम। शहजादी, मेरी गुलामी खत्म हो चुकी और कई बरस पहले बसाते खुद आका की तरफ से आजाद की गई थी मैं, और उसके बाद निकाह हुआ था हमारा, और वो भी मरहुमा वालिदा सुल्तान की मौजूदगी में। मलिका बातों से नहीं बनती हुरम, इसके लिए खून चाहिए, और वो खानदानी खून तुम में नहीं। आका, आने वाली खबर के मुताबिक वेनेदिक का बहरी बेड़ा कहीं भी नहीं। बहुत आराम से हमने कोर्फू पे कब्जा कर लिया। खिजर खैरुद्दीन पातशाह ने भी समंदर में नागुजीर इक़दामात कर लिए। वेनेदिक को जरूर मदद पहुंची है, वो गाफिल हमसे मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि हमारी तोपें बहुत ताकतवर हैं। मेतरेस और सिचान के रस्तों में खंदकें खोदी गई थीं। वो हमारी तोपों के हमले के बावजूद इन खंदकों के करीब पहुंच गए। किले के अंदर तक रसाई हो चुकी है आका। जज़ायर की वजह से हमला तवील हो जाए शायद, लेकिन यकीनन फतह हमारी होगी। कोर्फो को फतह करेंगे, उसके बाद अपनी भरपूर कुव्वत के साथ रूमा की जानिब बढ़ेंगे। अल्लाह की रजा से पाशा, अल्लाह की रजा से। बेड़े को कोर्फू जजीरे के करीब ले जाओ रईस, और इस चीज का ख्याल रखना कि एक भी कश्ती किले की मदद के लिए ना पहुंच पाए। खुले समंदर में 10 जहाज इंतजार करें, कोई मुदाखलत हो तो इत्तला दें। जो आपका हुक्म पाशा मोहतरम। अमीरुल बहर पाशा, हमारे अंदाजे से भी ज्यादा ताकतवर निकले ये काफिर लोग। पोप पाउलस अपने मकसद में कामयाब हो गया पाशा। तकरीबन सारी इतालिया को हमारे खिलाफ मुत्तहिद कर दिया, हत्ता कि शाकलेन और फर्डिनेंड को भी। ये क्यों नहीं कहते पाशा कि हमसे हमेशा भागने वाली सलीबी सपा मुतहद होकर मुकाबला आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सब बेहतर ही हुआ लुत्फो पाशा। अल्लाह की रजा से हमारे एक हमले से तमाम दुश्मन नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, और हमारे आका की सरबराही में इंशाअल्लाह फतह हमारे कदम चूमेगी। पापा मोहतरम, आपकी अजीम जहानत से बनाया हुआ खेल कामयाब हो गया, और ये कि तुर्क वेनेदिक वालों से ऐलान जंग करने पर मजबूर हो गए हैं। किसी और सूरत हाल में सुल्तान सुलेमान को रोकना मुमकिन नहीं था। कोर्फू किले वाले आखिर कितना मुकाबला कर सकते थे। हमारी अस्करी कुव्वत कोफोर की जानिब कूच कर चुकी है पापा मोहतरम। मौसम सरमा तक मुकाबला करने में कामयाब हुए तो वो पसपा होने पर मजबूर हो जाएंगे। तुम रोदोश को फरामोश कर रहे हो कार्डिनल। क्या याद नहीं तुम्हें, पूरे 7 महीने तक मुहासरा जारी रहा था। दुआ करें कि सुल्तान सुलेमान इस बार अपनी जिद पर ना अड़ जाए, क्योंकि अगर कोर्फू शिकस्त खा गया तो नहीं रहेगा रोमा भी। सुलेमान पहले की तरह बिल्कुल ताकतवर नहीं है, और ये कि इब्राहिम पाशा अब उसके साथ नहीं है। मालकोचू, तुम्हारी क्या राय है? कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं इस हमले में? हमारी कुव्वत के सामने कौन सा किला सलामत रह सकता है मेरे आका? मेरा ख्याल है ये मुकाबला तूल भी खींच सकता है। हमारे पाशाओं को रूदोश किले की अजीम फतह को दोहराने की अशद जरूरत है। महमद, सलीम, आओ खेमे में चलें।
वजीर आजम मोहतरम, मेरा ख्याल है कि ये सफर कितनी अहमियत का हामिल है आप समझ ही गए होंगे। अगर हमें इसमें फतह न मिल सकी तो हम सबकी तकदीर बदल जाएगी, खास तौर पर आपकी। तुम मुझे क्या धमकी दे रहे हो रुस्तम पाशा? हरगिज नहीं पाशा, मेरी क्या मजाल, लेकिन हकीकत सबके सामने आया है पाशा। लुत्फो पाशा ने ओतरांतो फतह कर लिया, अतराफ के बहुत से किलों पर भी कब्जा हो चुका है। आका ने हमारे सामने उन्हें मुबारकबाद देकर उनकी तरक्की कर दी है, और ये सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है पाशा। जानते हैं आप तो, किसी को बुलंदी पर बिठाने के लिए किसी को नीचे उतारना पड़ता है। खजीना सुल्तान आ गई हैं। न जाने अब हरम में कौन सा हादसा होने वाला है। वैसे तुम्हें तो पता होगा कि क्यों आई है वो। ओहो, मुझे क्या मालूम। इतनी बड़ी शहजादी से क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्यों आई हैं? हाँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा बस करो, मरजान आगा ना आ जाए कहीं दोबारा हरम में। ओहो, क्यों लेते हो उस मनहूस का नाम, वो भी शाम के वक्त। अल्लाह शुक्र तेरा कि पेट भरा मेरा। हाँ शुक्र है। मैं जरा जाकर शहजादों को देखता हूँ, आस पास भी निगाह डाल लूं। अच्छा तो फिर मैं भी जरा गोदाम में चलता हूँ, अनाज की बोरियां देख लूं जरा जाकर। आहा, सुम्बुल आगा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। खैर तो है निगार खातून, कैसे आना हुआ तुम्हारा? हुरम सुल्तान से मिलने आई हूँ आगा। मैं सुना था कि वो शाह सुल्तान से मिलने गई हैं। हाँ बिल्कुल। तुम्हें होने वाली वाकई की खबर नहीं है क्या कोई? ऐसा क्या हो गया? ओहो शकर आगा, तुम अगर गोदाम जा रहे हो तो मेरे लिए आते हुए वो जो पिछले महीने शहद आया था जरा वो भी लेते आना। गले में दर्द है बहुत, बिल्कुल नहीं बोला जा रहा मुझसे तो। हर बात का ख्याल रखना, कोई गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप सुम्बुल आगा को संभाल लें, बाकी काम मेरा है। निगार खातून गई हैं उनके पास, किसी भी तरह उन्हें रोक के रखेंगी। तो आप हमाम के सामने रहें और मेरे इशारे का इंतजार करें। शाह सुल्तान मकतूब वाले मसले पर तुमसे नाराज हैं, दोबारा गलती मत करना, वरना इस बार तुम नहीं बच पाओगी। खजीना सुल्तान मौजूद है क्या? कसम से मैं भी हैरान रह गया। हाँ, अचानक से आ गए बगैर बताए। और पता है सबसे पहले शाह सुल्तान के पास गई थी वो। सुना है बहुत शदीद झगड़ा हुआ है दोनों के दरमियान। क्या मसला था, कुछ पता चला तुम्हें? कुछ मुश्किल तो जरूर हुई, लेकिन मालूम कर ही लिया अल्लाह के हुक्म से। लेकिन ये अपने तक रखना, हुरम सुल्तान ने किसी को भी बताने से मना किया है। तुम्हें खुदा का वास्ता है बता भी दो आगा। शाह सुल्तान एक जमाने में इब्राहिम पाशा से मोहब्बत करती थी बहुत। पागल हो क्या? कौन ये चिंगारी लगा रहा है? कैसी चिंगारी खातून? शाह सुल्तान ने खुद एतराफ किया है अपनी जबान से। मैं दुआ मांगना चाहती हूँ। इस सब का मतलब यह है कि इब्राहिम पाशा सिर्फ खजीना सुल्तान और तुम्हारा ही नहीं बल्कि शाहबान सुल्तान का दिल भी जीत चुके हैं एक जमाने में। शहजादी, हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। भेज दो। शहजादी। हुरम,
गोया मुंतकिल होने का फैसला कर लिया? क्या हुआ हुरम? क्या तुम ये नहीं चाहती थी? खजीना को इस वजह से दुख होगा ये समझ रही थी तुम? शहजादी, वो मसला आप दोनों के दरमियान है। मुझसे जहां तक हो सका मैं मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। आपके लिए नया महल तैयार हो चुका है, आप जब चाहें वहां मुंतकिल हो सकती हैं। तुम किसका महल किसके लिए तैयार कर रही हो हुरम? बरसों से इस महल में हो और ये नहीं जान सकी। ये पूरी मुमलिकत सिर्फ तुर्क शाही खानदान की मिल्कियत है, इसलिए तमाम गुलामों की तरह मेरी मददगार नहीं बल्कि मेरी खिदमत गुजार हो। और उस दरख्त के नीचे से उतरकर छोटे शहजादे ने अपनी तलवार जो जोर से घुमाई, वो बड़ा सा ऊंट जमीन पर आ गिरा। नाज़ली खातून। फरमाइए फारिहा कल्फा। अभी मलिका नहीं है, तुम जाकर हमाम से हो आओ। बाद में तुम भी चली जाना कुलसूम। कुलसूम जाएगी, मैं ख्याल रख रही हूँ शहजादे का। जल्दी से तुम होकर आ जाओ पहले। मैं कहानी सुना रही हूँ शहजादे को। कुलसूम तुम चली जाओ। ठीक है, मुझे देर नहीं लगेगी वैसे भी। अब क्यों हर बार मुझे गुलामी का ताना देती हैं, जबकि जानती भी है कि मैं एक आजाद मलिका हूँ शहजादी। इस हकीकत से इनकार करने वालों का अंजाम सामने है, कोई भी नहीं रहा, लेकिन मैं अब भी मौजूद हूँ। हरम में जाओ हुरम, अपने बच्चों पर तवज्जो दो और हर सुबह जब आंख खुले तो रब का शुक्र अदा करो। अभी तक जिंदा हो इसलिए शुक्र करो। क्या मुझे धमकी देने के लिए आपने यहाँ बुलवाया है शहजादी? तुम्हारे इख्तियार का मतलब समझाना चाहती थी तुम्हें। आका की बख्शी हुई जिंदगी और उनकी औलाद के बारे में सोचो। अपने हिर्स को काबू में रखो, वरना जो कुछ तुम्हारे पास है वो छिन जाएगा। ऐसा ही चाहती हो? कोई नहीं छीन सकता। अपनी और अपनी औलाद की खातिर ही ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। जब से इस महल में आई हूँ इसी काम में मसरूफ हूँ। अगर एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा भी मैं अपना सर झुका देती तो समंदर की तह में पाती खुद को। शहजादी, शहजादे सो रहे हैं क्या? माशाअल्लाह। खैरियत तो है आगा, कैसे आना हुआ आपका? अफीफा खातून ने भेजा है मुझे, शहजादी के लिए दवा लेकर आया हूँ। मैं यही हूँ नूरजहां, तुम जब चाहो मेरे पास आ जाना। बहुत शुक्रिया शहजादी। अम्मी ने महल वापस जाने का कहा था, हमारे अपने महल में। ये बेहतर होगा, पहले की तरह हम करीब रहेंगे। शहजादी। मेहरमा। मुलाकात करने आई थी बच्चों से। रुक जाओ अगर चाहो तो, खाना साथ खाते हैं। बहुत अरसे से हमारी मुलाकात नहीं हुई, कुछ बातें ही कर लेंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। आवाज मत निकालना वरना गर्दन तोड़ दूंगा। नूरजहां ने महल वापस जाने का बताया। हाँ, शाहबान के नए महल में मुंतकिल होने का इंतजार कर रही हूँ मैं। बखैर खूबी हूँ शहजादी। मेहरमा,
मेरी प्यारी भतीजी, तुम्हें और तुम्हारे बरादरान को कितना चाहती हूँ ये तो जानती हो तुम। वालिदा और मेरे दरमियान जो होता है होने दो, तुम परेशान मत होना। बिल्कुल शहजादी, आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माजरत चाहती हूँ। आपकी इजाजत हो तो अपने कमरे में चली जाऊं? इजाजत है तुम्हें, जब दिल चाहे तुम आ जाना मेरे पास। शहजादी, आप मेरी बात नहीं मानेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। हुरम के झूठ के सबब शाह सुल्तान से झगड़ा ना करें। आपको अंदाजा नहीं, वो आप दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बनाना चाहती है। हुरम का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं गुलफाम, मैं सिर्फ अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। बाद में क्या होगा फिर? आका के वापस आने के बाद क्या वजाहत देंगी आप उन्हें? मुझे किसी को भी वजाहत देने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए मुंतखब किया गया था। अगर सजा दी गई तो मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, भुगत लूंगी। कुलसुम खातून, कहाँ रह गई थी तुम? हमाम गई थी फारिया कालपा। ऐसा क्या हो गया? तुमसे कहा था कि देर मत लगाना। चलो अब शहजादे को उनकी जगह पर लेटाओ। नाजली खातून कहाँ है? उसे भी भेज दिया है हमाम में, कुछ देर में आ जाएगी, तब तक तुम ख्याल रखो। निगार किस लिए आई थी यहाँ? अपनी दानिश में मुझसे कुछ उगलवाने की कोशिश कर रही थी मलिका। एक जमाने में शाह सुल्तान पाशा पे फरेफ्ता थी, ये सुनते ही उसकी जरा उतरी सूरत देखती आप। मुलाकात कैसी रही मलिका? उम्मीद है कोई परेशानी नहीं हुई होगी आपको। शाह सुल्तान जाने की तैयारी कर रही हैं, कम से कम इसी बहाने महल से तो दूर रहेंगी। शहजादा अब तक यहाँ क्यों सो रहा है? अभी कुछ देर पहले ही सोए हैं मलिका, मैं उन्हें बिस्तर पर दराज करने ही वाली थी। हाँ।